مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا أخي ترجم باللغة الأردية. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े रहम करने वाले निहायत मेहरबान हैं। और बरादरान यूसुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगा कर ले आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जी ने एक बात को गढ़ लिया, बस मैं ऐसा सब्र करता हूँ जो बगैर जज़ा व फज़ा वाला है, और अल्लाह ताला ही मदद ख्वास्ता है उन बातों पर जो तुम बयान कर रहे हो। هل تستطيع أن تطبق القواعد النحوية التي حفظتها على كلمة دم؟ نعم أستطيع. طبق. دم لفظ لأنه ما يتلفظ به الإنسان، ومن قسمه اللفظ الموضوع والمهمل موضوع لأن له معنى، ومن قسمه الموضوع المفرد والمركب مفرد لأنه وضع لمعنى المفرد، ويسمى المفرد كلمة. ومن ثلاثة أقسام من الكلمة الاسم والفعل والحرف اسم لأنه يدل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ومن علامات الاسم دخول حرف الجر والألف واللام ولحوق التنوين وكونه مسندا إليه ومضافا ومصغرا ومنسوبا ومثنى وجمعا ومنعوتا وكونه منادا ولحوق تاء التانيث المتحركة يوجد دخول حرف الجر ولحوق التنوين. ومن اسمك ما شاء الله تريد عدة سؤال. نعم سل عما تشاء. كم قسما للاسم باعتبار اختلاف الآخر؟ قسمان. ما هما؟ معرب ومبني. دم معرب أم مبني؟ معرب. ما هو تعريف المعرب؟ المعرب هو الذي يختلف آخره باختلاف العوامل. كم قسما للاسم باعتبار العموم والخصوص؟ قسمان. ما هما؟ معرفة ونكرة. دم معرفة أم نكرة؟ نكرة. ما هو تعريف النكرة؟ النكرة ما وزع لغير معين. كم قسما للاسم باعتبار الجنس؟ قسمان. ما هما؟ مذكر ومؤنث. دم مذكر أم مؤنث؟ مذكر. ما هو تعريف المذكر؟ المذكر ما ليس فيه علامة التانيث لفظا ولا تقديرا. كم قسما للاسم باعتبار التعدد؟ ثلاثة أقسام. ما هي؟ المفرد والمثنى والجمع. دم مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد. ما هو تعريف المفرد؟ المفرد ما يدل على واحد. كم قسما للاسم المعرب؟ قسمان. ما هما؟ منصرف وغير منصرف. دم منصرف أم غير منصرف؟ منصرف. ما هو تعريف المنصرف؟ المنصرف ما ليس فيه سببان أو سبب واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة: العدل والوصف والتانيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب ووزن الفعل والألف والنون الزائدتين. دم في أي حالة؟ في حالة الجر. لماذا؟ لأنه مسبوق بحرف الجر. ما هي علامة الجر؟ الكسرة. لماذا تجر بالكسر؟
لأنه مفرد منصرف صحيح يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. جاءوا أي قسم من الكلمة؟ فعل. أي قسم من الفعل باعتبار الزمن؟ فعل الماضي. أية صيغة؟ جمع المذكر الغائب. من أي باب؟ من باب زرد. أي قسم من الأقسام السبعة باعتبار الحروف الأصلية؟ معتل ومهموز. أي قسم من المعتل؟ معتل العين يقال له أجود. أي قسم من المهموز؟ مهموز اللام. كذب في أي حالة؟ في حالة الجر. لماذا؟ لأنه صفة ذلك. في كم شيء يتبع النعت منعوتا؟ النعت الذي ينعت المنعوت لا حال متعلق المنعوت يتبع المنعوت في 10 أشياء: المفرد والتثنية والجمع، الرفع والنصب والجر، والتذكير والتأنيث والمعرفة والنكرة. جزاك الله خيرا. نكتفي بهذا ونلتمس من الأخ الحافظ محمد شعيب أن يقدم أمامكم تلخيص ما ألقينا باللغة الأردية، فليتفضل مشكورا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के सामने अभी मेरे दो रुफ़क़ा ने अरबी ज़बान में कुछ तकल्लुम किया है। मैं उसकी कुछ तशरीह और वज़ाहत आप लोगों के सामने करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को भी बात समझ में आ जाए कि दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू फरमाई है। उनके दरमियान कुछ इस तरीके से बात हुई कि हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब ने कुरान करीम की एक आयत की तिलावत की, उसके बाद उस आयत का तर्जुमा आप लोगों के सामने पेश किया। तो हाफिज़ अब्दुल साहब ने उस आयत में से एक लफ्ज़ को दिया, लफ्ज़ तमुन को, और उससे मुताल्लिक़ सवाल किया कि भाई आपने जो नहव और सर्फ में कवायद याद किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं,
गुजरे। अगर आदमी इस फन को सही तरीके से हासिल नहीं करता है तो बाज़ मरतबा छोटी गलती की वजह से बड़ी शर्मिंदगी और जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ती है। मैं आपको एक वाक़या सुनाकर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि पहली सदी हिजरी में वलीद इब्न अब्दुल मलिक करके एक मशहूर बादशाह गुजरा है, जो कि सर और लहू में कुछ कमज़ोर था। एक मरतबा उसका दरबार आम लगा तो एक आरामी आया और उसने अपने दामाद की शिकायत की। तो बादशाह ने कहा, माशाअल्लाह का तुझ में क्या बुराई है? हालांकि बादशाह को क्या कहना चाहिए था, माशाअल्लाह तेरा क्या हाल है, यानी तू मेरे पास क्या मामला लेकर आया है। चुनांचे बादशाह के बाजू में उसका भाई सुलेमान बैठा हुआ था। उसने तस्वीर करते हुए कहा कि बादशाह सलामत आपसे ये पूछना चाहते हैं, माशाअल्लाह तेरा क्या हाल है। तो देखिए आप यहाँ पर जबर की जगह नहीं, पेश की जगह उसने जबर कह दिया। उससे मतलब कुछ का कुछ हो गया कि माशाअल्लाह का तर्जमा होता है तुझ में क्या बुराई है, और माशाअल्लाह का तर्जमा होता है कि तेरा क्या हाल है, तू क्या मामला मेरे पास लेकर आया है। चुनांचे उस आरामी ने जवाब दिया कि ज़ल्म अलैहि ख़तानी, कि मेरे दामाद ने मुझ पर जुल्म किया है। अब बादशाह का अगला सवाल क्या पूछना चाहिए कि तेरा दामाद कौन है, और इसको अरबी में क्या कहते हैं, मन ख़तानु का, तेरा दामाद कौन है। लेकिन बादशाह ने मन ख़तानु का नून के ऊपर पेश की बजाय जबर दे दिया कि मन ख़तान का, तेरी खतना किसने की है। कि देखिए यहाँ पर उसने बादशाह ने पेश की जगह जबर कर दिया, तो मतलब क्या से क्या हो गया। तो सुलेमान जो बाजू में बैठा हुआ था उसने फिर तस्दीक करते हुए कहा कि बादशाह सलामत आपसे पूछना चाहते हैं कि मन खतन का तेरा दामाद कौन है। तो इस वाक़े को बताने का मकसद ये है कि देखिए अगर इस फन को सही तरीके से हासिल नहीं किया जाएगा तो इसके अंदर कमी रह जाएगी और इसकी वजह से आदमी को जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी। प्लीज़ इसकी वजह से आदमी कुरान हदीस के मकाइम को कमा हक को समझ सकता है। तो इस मदरसे के अंदर इसी तरीके की मेहनत कराई जाती है ताकि तलबा के अंदर कुरान हदीस के मकाइम को समझने की सलाहियत पैदा हो जाए और वो उसके मकाइम को कमा हक को समझ सके। जैसा कि आपने अभी मुशाहिदा किया, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सर्व की बारीकियों से रोशनास फरमाए और कुरान हदीस के मकाइम को समझने के, कमा हक को समझने के लिए इस फन को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।